Hello everyone. So in the previous lecture we have discussed 3D close packing. So today we will start our next topic, and that is formula of compound and number of voids. It's a very important topic because in board exam one question will come from this topic, and it is writing formula. Okay, but before solving some, we will discuss some questions also today, which were asked in the board exams and which were asked in the competitive exams. So we will discuss those also. But before discussing those numericals, we must know what is the rules, what are the points which we have to keep in our mind here. So formula of a compound means we have to write a formula of a compound. But remember voids. As we know, number of voids are of two type. One is octahedral void, second one is tetrahedral void. And we know this point also, the number of atoms in cubic structure are equal to n. In the same way, the number of n are there, so octahedral voids are also n, and the tetrahedral voids are double of the number of atoms present there. These things we have discussed in previous lecture. But if our crystal is ionic, or you can say if our solid is ionic, so in that case what point we have to keep in our mind, and that's a very important topic here, important point here. If ionic solid is there, in that case we know, suppose an example is there, NaCl. It is an ionic solid. In that case we know two ions are there, one is positive, other is negative. So in that case, in ionic solid, bigger ion, and we know out of Na positive and Cl negative, which one is bigger ion? We have discussed in 9th class, anions are always having bigger size because of the more electron cloud. So bigger ion, that is called our anion, always form what? Cubic structure. So anion जो भी होगा वो हमेशा क्या बनाएगा? स्ट्रक्चर बनाएगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाएगा. That may be CCP, that may be HCP, and that may be FCC. ये बात ध्यान रखनी है कि bigger ion, that is anion will always form cubic structure. Then one the smaller ion, which one the smaller one? Positive one, so it is our cation. They will occupy voids. मीन्स ये कहां प्रेजेंट होंगे? ये वोइड्स पे प्रेजेंट होंगे. ठीक है, एनायन स्ट्रक्चर बनाएंगे और जो कैटायंस होंगे वो वोइड्स को कवर करेंगे. एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग लाइन है, वो लाइन ध्यान रखनी है. वो क्या है, वो पॉइंट क्या है कि कभी भी नॉट ऑल वोइड्स आर कवर्ड. मीन्स सारे वोइड्स कभी भी कवर नहीं होंगे, हमेशा कुछ ही कवर होते हैं. या मैं ये कह दूं, only fraction of voids are covered. means fraction of voids cover होते हैं, सारे voids कभी भी cover नहीं होते. ठीक है, so these things you have to keep in our mind. और इन्हीं चीजों को हम यूज करके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे. ये पॉइंट्स नोट करने हैं कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट जितने भी होते हैं उनको n शो करते हैं. ऑक्टेडल वॉइड्स कितने होते हैं उसके अंदर? जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं n. टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाते हैं? डबल. एनायन क्या बनाता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्यूबिक स्ट्रक्चर. बट कैटायन कहां प्रेजेंट होता है? वॉइड्स पे. सो लेट्स बिगिन विद सम न्यूमेरिकल्स. सो हियर इज अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल, एंड दैट इज योर सोल्ड एग्जांपल इन एनसीईआरटी बुक आल्सो. व्हाट दे आर सेइंग इन द एग्जांपल, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स. मतलब एक कंपाउंड बनाया गया है दो एलिमेंट्स का यूज करके. एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? X एंड Y, जिनमें से Y आपका क्या है? एनायन. ध्यान रखना, वो जो पॉइंट मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं, तो Y क्या आपका? एनायन. और ध्यान रखना, मैंने Y क्या, एनायन क्या बताया था? बिगर साइज का है, जो क्या बनाएगा? जो कि क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाएगा. कह रहा है यहाँ पे Y एनायन है, मेक क्या बनाता है? वो बनाता है आपका CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाता है. एंड दूसरा एलिमेंट कौन सा था? X, जो कि क्या है आपका? कैटायन. और जो क्या ऑक्युपाई करेगा? वो ऑक्युपाई करेगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? ये हमें बनाना है. ठीक है,
शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को देखते ही आप विद इन 1 मिनट आप इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे। सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? फॉर्मूले के अंदर एलिमेंट है, एक x है और दूसरा क्या है, y। ठीक है, अब स्टेटमेंट को पढ़ें। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, y एनायन है, मेक CCP, मतलब y क्या है आपका, एनायन है, तो x क्या है आपका, केटायन है। y क्या बनाता है, y बनाता है CCP। सभी को पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है CCP इक्वल किसके होता है, FCC के, और ये किसके इक्वल होता है, HCP के। तो कहने का मतलब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। और आपको पता है FCC में हमने पढ़े हैं नंबर ऑफ एटम्स, याद होंगे सभी को। नंबर ऑफ एटम का लेक्चर हमने, अगर किसी ने नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं FCC के अंदर, वे होते हैं कितने, 4। मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन CCP, FCC और HCP कितने, 4। अगर मैंने FCC में लिखे हैं तो ध्यान रखना HCP में भी कितने एटम्स होंगे, 4। CCP में कितने एटम्स होंगे, 4। इट मींस मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए यहां, 4। ठीक है, आगे क्या कहता है, Y anion makes CCP and X cation occupy octahedral voids। ध्यान देना कौन से void है, octahedral void। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही क्या होते हैं, कौन से void होते हैं, octahedral voids। डबल क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल void। उसने कहा क्या ऑक्युपाई किया है, octahedral voids। अगर एटम्स यहां 4 है, एटम्स यहां 4 है, तो यहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे, 4 होंगे। यस और नो? अगर CCP मुझे पता लग गया, CCP FCC HCP सारे इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स मुझे पता लगे, तो यहां मुझे क्या पता लगा कि 4 क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, X एटम Y एटम दोनों मुझे क्या बनाना है, फॉर्मूला। मैं रेशो लेके चलता हूं, तो यहां भी रेशो क्या आ जाएगी, 4:4। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, क्या आ गया, x कितने आ गए, 1, y कितने आ गए, 1। तो फिर फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया x y। दैट इज अवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि उसमें क्या कुछ पूछा गया है। सो इन अवर सेकेंड क्वेश्चन वर्स दे आर आस्किंग, क्वेश्चन सेकेंड, एटम्स ऑफ एलिमेंट B form HCP lattice, means एटम B क्या बनाता है, HCP बनाता है। एंड दोज ऑफ एलिमेंट A ऑक्युपाई करता है 2/3, ध्यान देंगे 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। B ने क्या बनाया, HCP, और A ने क्या ऑक्युपाई किया, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ट्रिक सेम है, एलिमेंट कौन कौन से, A और B, बीच में क्या रखूं, रेशो। B क्या बनाता है, HCP, उसके नीचे लिख लीजिए ये बनाता है क्या, HCP। सभी को पता है HCP इक्वल टू किसके, CCP के। CCP इक्वल किसके, FCC के। और FCC के अंदर है, सबके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने, 4। तो क्या लिख लू यहां, नंबर ऑफ एटम्स 4, बिल्कुल लिख सकता हूं। नंबर ऑफ एटम्स अगर यहां 4 हैं, अब ए में उसने क्या बताया, ए के लिए उसने बताया कि एलिमेंट ए ऑक्युपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ध्यान रखना, नंबर ऑफ एटम अगर 4 आए हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 4 होंगे कि 8 होंगे। अगर 4 हो जाएंगे तो बात किसकी हो जाएगी, ऑक्टेहेड्रल वॉइड की। बट यहां टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करो, जस्ट क्या हो जाएंगे, डबल। तो मैं यहां क्या लिख दूं, क्या मैं लिख दूं कि 8 TB हो गए, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्लियर है? बट उसने टेट्राहेड्रल वॉइड सारे यूज नहीं किए, कितने यूज किए, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो क्या मैं लिख दूं, मल्टीप्लाई बाय 2/3, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स जितने भी थे, कितने थे, 8 थे, उनका कितना लिया गया, 2/3 लिया गया है। ठीक है, तो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 8 2 जा 16 डिवाइड बाय 3, रेशो यहां क्या है, 4। क्या मैं इसके डिवाइड बाय 1 रखूं, P/Q की फॉर्म में रख सकता हूं। सिंप्लीफाई करूं कैसे,
क्या 3 को यहां मल्टीप्लाई हो 1 को यहां मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकते हैं। क्या बनेगा 16:12 बन जाएगा। 4 3 जा 12 एंड 16 1 जा 16। क्या ये सिंप्लीफाई और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12। रेशो क्या बनी, वी आर हैविंग 4/3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 4 किसके लिए आया, ए के लिए, 3 किसके लिए आया, बी के लिए। तो फॉर्मूला क्या बन गया, A4B3। दैट इज अवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो इन थर्ड क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग, राइट द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन विच, मीन्स क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, इन विच एलिमेंट ऑफ y एलिमेंट फॉर्म CCP लेटिस। ध्यान दें y क्या बना रहा है, CCP लेटिस। एटम ऑफ x ऑक्युपाई 1/3। ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में क्या था 2/3, इस क्वेश्चन में क्या है 1/3। 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, जस्ट वहां 2/3 था और यहां कितना आ गया 1/3। ट्रिक भी बिल्कुल सेम है, तरीका भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले x मेरे पास है, y मेरे पास है, तो y क्या कर रहा है, y फॉर्म CCP, तो उसके नीचे लिख लूं CCP इक्वल किसके, FCP के, ये इक्वल किसके, FCC के। और हमें पता है FCC जब भी आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 4, तो मैंने लिख दिया यहां नंबर ऑफ एटम्स कितने 4। अब बात किसकी करता है, x की। x के अंदर उसने क्या कहा, x ऑक्युपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। फिर से वही बात, अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स मेरे 4 हैं तो मेरे टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड मेरे हो जाएंगे 8 हो गए टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बट उसने कहा कि सारे यूज नहीं हुए हैं, कितने यूज हुए हैं 1/3। 1/3 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1/3। सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ गया 8/3, रेशो कितना 4। फिर से वही चीज, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया, वी आर हैविंग 8/12। कट सकते हैं बिल्कुल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। रेशो क्या आ गई 2/3। x रेशो y मेरे पास आ गई 2/3। तो फॉर्मूला क्या बन गया, x2y3। दैट इज अवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इन अवर फोर्थ क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। In our fourth question, what they are asking the same formula, but what is given? Let's see. कहता है कि फेरिक ऑक्साइड, फॉर्मूला नहीं बताया, फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेस इन हेक्सागोनल क्लोज पैक, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं HCP। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एरे ऑफ ऑक्साइड आयन, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक की फॉर्म में उसको सजाया गया है, उसका अरेंजमेंट किया गया है विद 2 आउट ऑफ एवरी 3। इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहां कि 2 आउट ऑफ एवरी 3 का मतलब क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाइड बाय फेरिक आयन। कहता है कि जो फेरिक आयन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं, बट कितना कवर करते हैं 2 आउट ऑफ एवरी 3, जिसका बिल्कुल सिंपल, उसने इसको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बट ये एक्चुअली में क्या है, इट इज अवर 2/3। इस बात का मतलब क्या है, 2 आउट ऑफ एवरी 3 का मतलब क्या है 2/3, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर कितने हुए हैं 2/3। बस यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं और क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है, 2 आउट ऑफ एवरी 3 का मतलब क्या है 2/3। ठीक है, तरीका वही है, ट्रिक वही है। कैसे, अब उसने कहा कि फेरिक ऑक्साइड, अब मुझे नहीं पता कि फेरिक ऑक्साइड क्या होगा, मतलब Fe पे कितना चार्ज हो कितना नहीं, बट अगर आपको फिर भी आपने 11th क्लास में ध्यान से पढ़ा होगा तो 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है Fe2 पॉजिटिव, एक होता है Fe3 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फेरस, बट इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेरिक। तो उसने यहां फेरिक ही लिया है। ठीक है, तो Fe3 पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं फेरिक, और Fe2 पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं फेरस। ठीक है, तो यहाँ फेरिक ही यूज किया है। ऑक्साइड सभी को पता होगा O2 नेगेटिव आपका होता है, तो बट मैं यहाँ ये Fe3 पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाऊंगा, सिंपली एलिमेंट को लिखूंगा यहाँ 1 इज माई Fe, अदर इज माई ऑक्सीजन, बिकॉज मुझे फॉर्मूला बनाना है, मुझे इस चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ रेशो में उसने कहा है
उसने कहा क्या है कि जो फेरिक ऑक्साइड है क्रिस्टलाइजेज इन हेक्सागन क्लोज पैक्ड एरो ऑफ ऑक्साइड आयन, मतलब ऑक्साइड आयन आपका सभी को पता है नेगेटिव होगा, जिसको हम बोलते हैं O2 नेगेटिव, और O2 नेगेटिव क्या होता है आपका एनायन होता है, कैटायन होता है एनायन। और कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है कि जो बिगर साइज का आयन होता है वही क्या बनाता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है। तो मतलब ऑक्सीजन ने क्या बनाया होगा, HCP। HCP इक्वल होता है CCP के, ये इक्वल होता है FCC के। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने रहे होंगे, 4। नंबर ऑफ एटम्स 4 आ गए। अब उसने कहा क्या है कि 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अगर नंबर ऑफ एटम 4 है तो यहां पे 4 ही क्या रहे होंगे, ओवी रहे होंगे। ओवी का मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहे होंगे। बट उसने कहा कि सारे यूज हुए हैं या नहीं हुए हैं, नहीं। तो उसने कहा कि टू आउट ऑफ 3 यूज हुए हैं, तो 2/3 यूज हुए हैं, तो दैट इज 2/3। 2/3 हो गया तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 2 जा 8, 8/3 रेशो में क्या आ गया 4। फिर से वही कंसेप्ट, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, क्या 8/12 आ गया, बिल्कुल आ गया। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, रेशो क्या आई 2/3। आपके पास क्या क्या है, आपके पास Fe रेशो O है, Fe कितना 2, O कितना 3। फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया Fe2O3, दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन 5 इज देयर। इन क्वेश्चन 5 what they are asking, and this is a very important question also because it was asked in IIT JEE 2012। ये IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बट आपको जस्ट एस्टिमेट लगाना है। ये बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है जैसे मैंने अब तक डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, एक कंपाउंड MPXQ, एक कंपाउंड है MPXQ, P का नहीं पता, Q का नहीं पता, M का नहीं पता, X का नहीं पता, मतलब M और X उसने मान रखे हैं, हमें P और Q का नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। तो उसने यही पूछा कि फॉर्मूला क्या बनना। तो कंपाउंड MPXQ है CCP अरेंजमेंट, अरेंजमेंट दे दिया CCP, अरेंजमेंट ऑफ X, कौन बना रहा है अरेंजमेंट, कौन बना रहा है स्ट्रक्चर, X बना रहा है स्ट्रक्चर। इट्स यूनिट सेल स्ट्रक्चर इज शोन बिलो, ये स्ट्रक्चर यहां नीचे दे रखा है। उसने पूछा क्या है इसका इंपिरिकल फॉर्मूला, मतलब सिंपल सी बात वही है, उसने पूछा क्या है इसका कंपाउंड फॉर्मूला या फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड उसने पूछा है। स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उसने 4 ऑप्शन भी दिए हैं कि इनमें से विच ऑप्शन इज अवर राइट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दिया है उसने MX, सेकंड ऑप्शन MX2, थर्ड ऑप्शन M2X, फोर्थ ऑप्शन M5X14। उससे पहले स्ट्रक्चर को स्टडी करना है और उसके हिसाब से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। सबसे पहले डॉट को उसने क्या माना है X, स्टार को उसने क्या माना है M। अब जो डॉट्स हैं ये कहां कहां प्रेजेंट हैं, जितने भी कॉर्नर हैं सब पे आपकी डॉट्स हैं। बट ध्यान से देखें तो जितने भी फेस हैं हर फेस के सेंटर में भी क्या है आपका X प्रेजेंट है। तो हर फेस के सेंटर में भी है और सारे कॉर्नर पे भी है। स्टार मींस M, M कहां कहां है, M आपका एक तो बॉडी के सेंटर में है और 2 आपके ये अपर एजिज पे रहे और 2 ये आपके लोअर एजिज पे रहे, मतलब टोटल 4 एजिज पे आपका M है और एक बॉडी के बीच में है। ठीक है, तो अभी इन्हीं स्टेटमेंट का यूज करके हमें क्या बनाना है इसका फॉर्मूला। ट्रिक वही है, तरीका वही है। कैसे, मैंने लिखा M, मैंने लिखा X, X आपको बता रखा है, M आपको बता रखा है कि P और Q हमें निकाला कि हमका फॉर्मूला में पता करना कि फॉर्मूला उसका क्या है। बट उसने एक अरेंजमेंट भी दिया है अलग अलग इस फिगर को ध्यान में रखते हुए। तो इस फिगर को ध्यान में रखते हुए हमें इस स्टेटमेंट को लेके चलना। सबसे पहले मैं लेके चलूंगा X को। X मेरे पास कहां कहां है, X मेरे पास है कॉर्नर पे है और फेस के सेंटर पे है। सभी को पता है कॉर्नर कितने होते हैं 8, कॉर्नर कितने होते हैं 8, और हर कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है 1/8। बस ध्यान रखना कॉर्नर के अलावा भी कहीं प्रेजेंट है, वो कहां है फेस में। क्या मैं लिख दूं प्लस, क्योंकि फेस के भी तो फेस में तो प्रेजेंट है, तो कॉर्नर पे तो है साथ में प्लस में फेस भी प्रेजेंट है। फेस कितने होते हैं, फेस होते हैं आपके 6, क्योंकि 6 फेस के अंदर प्रेजेंट है। एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कितना बन गया आपका 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 से 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास 1 + 3, टोटल कितना बचा आपके पास 4। कितना बचा आपके पास 4। और वैसे भी
एक्स आपको यहां से भी पता लग जाता है कि कैसा दे रखा है उन्होंने, सीसीपी। सीसीपी इक्वल किसके होता है, एफसीसी के। मैंने पहले ही बता रखा है एफसीसी इक्वल होता है सीसीपी के, और ये सारी चीजें क्या होती हैं, इक्वल। सीसीपी से भी आपका क्या आ सकता है यहाँ 4, बट हमने फिगर की हेल्प से बनाया है तब भी हमारा कितना आया है 4। नाउ एम, एम कहां कहां प्रेजेंट है, एम आपका एक तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और 4 आपके एजिस पे प्रेजेंट है। ध्यान से सुनना यहाँ कि यहाँ हमारे पास एजिस, कितनी एजिस पे प्रेजेंट है, 4 एजिस पे प्रेजेंट है और एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। मैं लिख लेता हूं यहां 1 एटम प्रेजेंट है बॉडी सेंटर के अंदर, ठीक है। बट प्लस में साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास एजिस पे भी है। आपको याद होगा कि हमारे पास एक यूनिट सेल में टोटल एजिस कितनी होती हैं, 12, बट यहां 12 की 12 एजिस पे एटम प्रेजेंट नहीं है, एम प्रेजेंट नहीं है। केवल कितनी एजिस पे प्रेजेंट है, 2 अपर साइड में है और 2 लोअर साइड में। तो टोटल कितनी एज पे प्रेजेंट है, 4, मतलब 4 एजिस पे प्रेजेंट है। और एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, या एक एज पे जो एटम प्रेजेंट होता है वो कितनी और एजिस से घिरा होता है, वो होता है 1/4। या ये कह दूं कि एक एज पे जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 1। एक बॉडी सेंटर का, एक हमारा एज से आ गया, टोटल कितना आ गया 2। तो एम कितने आ गए हमारे पास 2, बट एक्स हमारे पास कितने आए थे 4। तो क्या हमारे पास रेशो ये बन जाएगी, एम एक्स की रेशो, एम कितने 2, एक्स कितने 4। क्या सिंप्लीफाई कर दें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा एम आपके 1 होंगे, एक्स आपके 2 होंगे। तो फॉर्मूला बनेगा mx2। चेक करो विच ऑप्शन इज अवर राइट। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। दैट इज अवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग, सी द स्टेटमेंट फर्स्ट। क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज सीसीपी। स्ट्रक्चर क्या है, सीसीपी। द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन, ठीक है। ऑक्साइड आयन क्या बना रहा है आपका, सीसीपी बना रहा है। ऑक्साइड आयन अगर सीसीपी बना रहा है, 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाइड बाय, और 1/4 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड किए हैं किसने, ए ने। ध्यान से सुनना, ऑक्साइड आयन क्या बना रहा है, सीसीपी। 1/4 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई किसने किए हैं, ए ने। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाय एटम बी। फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड निकालना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपको मैंने पहले ही बताया ट्रिक वही चलेगी हर केस के अंदर। और ये क्वेश्चन सीबीएसई AIPMT 2012 में पूछा गया है, ठीक है। ये वहां से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां पे उसने 3 चीजें दी हैं। एक दिया है ऑक्साइड सीसीपी बना रहा है, 1/4 टेट्राहेड्रल वॉइड को ए कवर कर रहा है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बी कवर कर रहा है। ट्रिक वही है, सॉल्यूशन मैं यहां कर रहा हूं। हाँ, उससे पहले 4 ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन उसने दिया है AbO2, बी दिया है A2BO2, सी दिया है A2B3O4, डी दिया है AB2O2। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है हम सिंपली निकाल लेंगे ट्रिक से। A/B/O, सभी में ए पहले दिया है, बी बाद में दिया, तो मैंने इसको इस तरीके से ही लिख लिया, ठीक है। फिर से वही ट्रिक अपनी, ऑक्साइड मतलब ओ क्या बना रहा है, सीसीपी, मतलब ओ बना रहा है सीसीपी। बी कौन कवर कर रहा है, बी कवर कर रहा है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर कर रहा है बी। तो मैंने यहां लिख दिया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएंगे यहां। ए क्या कवर कर रहा है आपका, ए कवर कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ये आएगा यहां टेट्राहेड्रल वॉइड। बट कितने कवर कर रहा है, ये कर रहा है मल्टीप्लाई बाय 1/4, मतलब 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर रहा है, ठीक है। हो गया आंसर, हो गया सोल्व। कैसे करना है पता है सभी को। सीसीपी इक्वल टू किसके होता है, एचसीपी के, और ये किसके इक्वल होता है, एफसीसी के। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए 4, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए 4। अगर नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे, ये भी कितने होंगे आपके 4। और अगर
नंबर ऑफ एटम्स 4 है, तो फिर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? ध्यान देना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर जस्ट डबल ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। तो कितने हो जाएंगे? क्या ये आपके 8 हो जाएंगे? बट उसका भी कितना 1/4 यूज किया है ए ने। सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या मैं इसको लिख दूं 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो क्या मेरे पास रेशो बन गई 2/4 और भी सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4, मतलब ए कितने 1, बी कितने 2 और ओ कितने 2। फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला आपके पास आ गया, ए कितने थे 1, बी कितने थे 2 और ओ कितने थे 2। तो मैं इसको 1 को लिखूं या नहीं लिखूं वो मेरी मर्जी है। तो दैट इज फॉर्मूला इज A B2O2। चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द राइटिंग फॉर्मूला, या फिर ये कह सकते हैं फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स। ये टॉपिक आपका यहाँ खत्म होता है। ठीक है, सो ऑल दी 6 क्वेश्चंस वी हैव डन हियर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैंने केवल ये जो मुझे अच्छे क्वेश्चंस लगे वो मैंने यहाँ पे सोल्व किए हैं। नाउ देयर विल बी अ क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स दैट बार बार मैं दो बातें कर रहा हूं। मैं बात क्या कर रहा हूं कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं एफसीसी, सीसीपी और एचसीपी के अंदर कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। या मैंने एन मान लू, ऑक्टेट्राहेड्रल वॉइड्स को भी हम एन मानते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को हम 2n मानते हैं। ये एक्चुअल में इतने होते भी हैं या नहीं होते हैं, तो हम उनको कैसे पता करें कि भाई ऑक्टेट्राहेड्रल वॉइड्स मेरे नंबर ऑफ एटम्स के बराबर ही होते हैं या टेट्राहेड्रल वॉइड मेरे जस्ट डबल होते हैं? तो उनको बताने के लिए मैंने जो ट्रिक लिखी है यहाँ, ट्रिक बनाऊंगा अभी मैं यहाँ, ट्रिक फॉर लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी एंड सीसीपी। इनके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं और कहां होते हैं, ऑक्टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं और कहां होते हैं, ये अब हम पता करेंगे, ताकि आपको जो अभी मैंने न्यूमेरिकल करवाए हैं वो सारे क्लियर हो जाए कि ये 4n 2n या n हम क्यों लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब इन द फॉर्म वी कैन से कि नंबर ऑफ एटम्स n हम लेके चलते हैं, ऑक्टेट्राहेड्रल वॉइड भी हमारे n होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे 2n होते हैं। ये क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, लेट्स सी। ट्रिक मैंने क्या बनाई है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, ये मैंने सिंपल क्वेश्चन बनाया है, टेट्राहेड्रल वॉइड जितने भी हैं वो सारे के सारे कहां प्रेजेंट होते हैं? नियर टू द कॉर्नर्स। जितने भी कॉर्नर होते हैं ये उसके नजदीक होते हैं। ठीक है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर ड्रॉ करूं तो मैं मान के चलूं कि मेरा यहां भी टेट्राहेड्रल वॉइड हो सकता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड मेरा यहां हो सकता है, एक 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 यहां हो सकता है और एक यहां हो सकता है। कितने हो गए चेक करना एक बार। अगर मैं चेक करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए? 8। क्यों हो गए? क्योंकि क्रिस्टल कैसा था? सिंपल। बट अगर मैं एफसीसी लेके चलूं इसको तो एफसीसी लेके भी कितने बनेंगे? 8 बनेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। दूसरी बात, अगर मैं ऑक्टेट्राहेड्रल वॉइड लूं तो मेरे पास नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होंगे उसको पता करने के लिए ट्रिक क्या याद रखनी है? एक तो होगा बॉडी के अंदर, ये कहां प्रेजेंट होगा? बॉडी सेंटर में, और प्लस में बाकी कहां होंगे? वो कहां होंगे? एज सेंटर पे। एक तो कहां होगा? बॉडी सेंटर में, और बाकी कहां होंगे? एज सेंटर में। पता कैसे करेंगे? चेक कर लेते हैं। टोटल एज कितने होते हैं आपके? 12। टोटल एज कितने होते हैं? 12। और एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 4, 1/4। तो कितना आ गया आपके पास यहाँ? 3। एक कहां प्रेजेंट है? बॉडी के अंदर। 3 कहां प्रेजेंट है? एज के अंदर। तो टोटल वॉइड कितने हो गए आपके पास? 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए टोटल? 4। बट किसके अंदर हम ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं एफसीसी, सीसीपी और एचसीपी के अंदर। आपकी बुक में हेडिंग मिलेगी एफसीसी और सीसीपी के अंदर, उसने एचसीपी नहीं दिखा होगा बट हम उसके अंदर भी काउंट कर सकते हैं। तो कितने वर्ड आ गए? 4। ऑक्टेट्राहेड्रल वर्ड मैंने अभी भी निकाले, कितने निकाले हैं? टोटल कहां प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स पे। कितने होंगे? 1।
अब जो ये वर्ड्स प्रेजेंट होंगे ये कहां कहां प्रेजेंट होंगे, एक तो उसने कहा कहा उसने एक तो कहा बॉडी के सेंटर में, ये आ गया आपका एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बाकी उसने कहा कहे, उसने कहा कि जितनी भी आपकी एज हैं उन सभी एज के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये आपके कहां हो गए सारे, एज सेंटर में। एजेस कितनी होती है टोटल 12, एक एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4, टोटल कितना आ गया 3, तो 3 और 1 टोटल कितने हो गए 4। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहां होते हैं, नियर टू द कॉर्नर। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि हाउ यू विल लोकेट, ड्रॉ करके बताइए कि एक टेट्राहेड्रल वर्ड कहां है और एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहां है, उसके लिए मैं फिगर ड्रॉ करूंगा, तो उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा टेट्राहेड्रल वर्ड के लिए। टेट्राहेड्रल वर्ड मेरे कितने आए हैं 8, ये मेरे कितने आए हैं 3, 3 + 1 टोटल कितने हो गए 4। ध्यान से देखना, पहले मैं बना रहा हूं किसके लिए, टेट्राहेड्रल वर्ड के लिए स्ट्रक्चर। ध्यान में क्या रखना है, एफसीसी, क्योंकि उसने पूछा किसके अंदर है, एफसीसी के अंदर पूछे हैं। अब एफसीसी के अंदर पूछे हैं तो सबसे पहले मैं क्या बनाना पड़ेगा, अपना क्रिस्टल लेटिस बनाना पड़ेगा। पूरा क्रिस्टल लेटिस बनाएंगे जिसमें जैसे हम जो हमने ड्रॉ किया था पहले, जिसमें यूनिट सेल आपके होते थे। बार बार बनाने की प्रैक्टिस करें ताकि आपको चीजें सारी समझ में आ जाए। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहां टेट्राहेड्रल वर्ड के अंदर सबसे पहले एफसीसी बनाना है। एटम्स कहां कहां प्रेजेंट होंगे, सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और हर फेस के सेंटर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो सारे आइटम कहां कहां आ गए, कॉर्नर पे आ गए और फेस के सेंटर में आ गए। अब आप चेक करें कि जो हमारे पास एक यूनिट सेल बना है, ध्यान से देखना यहां जो मेरे पास एक यूनिट सेल बना है, ये वाला मेरे पास एक यूनिट सेल बना है। इस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स, कितने जो मेरे पास एटम्स आए हैं पूरे यूनिट सेल के अंदर, चेक करें। इस पूरे यूनिट सेल के अंदर एक एटम ये आया है यहां, एक एटम ये आया है यहां, एक एटम ये आया है यहां और एक एटम ये आया है यहां। मैं इनको डार्क कर देता हूं। तो मेरे पास ये 4 एटम आए हैं। ध्यान देना, ये वाला एटम फ्रंट फेस का नहीं है, ये बैक साइड वाले फेस का है। ठीक है, अब जो ये मेरे पास 4 एटम आए हैं, इन चारों को अगर मैं इस तरीके से जोड़ूं, ध्यान से देखना, और इसके साथ ये डॉटेड लाइन में लगा रहा हूं, तो ये अरेंजमेंट कैसा अरेंजमेंट बनता है, टेट्राहेड्रॉन बनता है। अगर आप चेक करें तो बेस में ये स्ट्रक्चर जो आपका बना है, ये आपका स्ट्रक्चर जो बना है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना है। ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है, ये लाइन यहां पे आ गई, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया और फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये पीछे एक डॉटेड लाइन जो मैंने ये यहां लगाई। तो ये कुछ अरेंजमेंट बनता है और ये अरेंजमेंट किसका है, टेट्रा
टेट्राहेड्रॉन का है। तो जब ये टेट्राहेड्रॉन बना होगा, मैंने पहले भी क्लास में आपको बताया है कि अगर मैं यहां पे एक एटम रखूं, यहां पे एक एटम रखूं और यहां पे एक एटम रखूं, या मैं इसको ऐसे बना लूं, इसकी बजाय मैं इसको ऐसे बना लूं, और एक एटम मैं ऊपर रखूं, तो आपको बता रखा है मैंने पहले भी, जो ये जगह है, ये सेकंड लेयर, ये वाला एटम यहां आके इसको क्या कर देता है, इसको कवर कर देता है, और जो कवर हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये वॉइड कुछ यहां पे रहा होगा, इसीलिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई है, वो ट्रिक क्या बताई है कि वो नियर टू द कॉर्नर होगा, तो टेट्राहेड्रॉन अरेंजमेंट बनेगा, और ये जो बनेगा ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको बताना चाहूं ओवी का मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा कि जो मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कहां पे प्रेजेंट होगा। वो मैंने आपको दो जगह बताया है, या तो वो बॉडी के बीच में प्रेजेंट होगा या फिर वो एज पे प्रेजेंट होगा। बात वही लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम एफसीसी बनाएंगे, अगर मैं यहां पे पॉइंट बनाऊं तो ये मेरा बिल्कुल बॉडी के बीच में आने वाला पॉइंट है, और ये जो बॉडी के बीच में आने वाला पॉइंट है, ये अगर आप चेक करें तो ये कितने नंबर ऑफ एटम से घिरा हुआ है, चेक करें। अगर मैं इधर जाऊं तो यहां पर भी क्या होगा, मेरा एक एटम होगा। अगर मैं फ्रंट में आऊं तो यहां भी मेरा एक क्या होगा, एटम होगा। अगर मैं पीछे जाऊं तो यहां भी मेरा, क्योंकि ये फेस में लगा रहा हूं मैं, ये पिछले फेस का एटम है, ये फ्रंट फेस का एटम है, ये राइट फेस का एटम है, ये लेफ्ट फेस का एटम है, ये डाउन फेस का एटम है, और ये अपर फेस का एटम है। और अगर मैं इनको जोड़ूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये कुछ अरेंजमेंट ऐसा बनता है, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे भी जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे भी जुड़ेगा, ये इससे भी जुड़ेगा, ये इससे भी जुड़ेगा, और ये इससे भी जुड़ेगा। अगर आप चेक करें, मैं इनको भी डार्क कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। अगर आप चेक करें तो जो ये अरेंजमेंट बना है, ये अरेंजमेंट आपका बना है ऑक्टाहेड्रॉन अरेंजमेंट। और कितने एटम यूज हुए हैं, 6 एटम यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, और जो ये बीच में रह गया है ये आपका क्या है, ये आपका है octahedral voids. So that is the location of octahedral voids. कब, जब ये बॉडी के बीच में है। ठीक है, अगर ये एज पे आएगा तो फिर ये यहां पे जनरेट होगा, और फिर हम उसको साथ में एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे डॉटेड लाइन लगा के, तो ये यहां पे भी ड्रॉ हो सकता है, ये यहां पर भी ड्रॉ, मतलब किसी भी एज पे ड्रॉ कर लीजिए, मैंने बॉडी में ड्रॉ कर दिया है, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। सो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि वेयर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल लोकेट एंड वेयर द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या टेट्राहेड्रल वॉइड विल लोकेट। सो दैट इज द ट्रिक टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड octahedral void. ठीक है, so in our next lecture we will start new topic, that is packing efficiency.